Assalamualaikum students, how are you all? Hope so you will be fine. Today we have to do question number 3. So open page number 14, subject GK. Question number 3 is join the picture of communication tools to their correct name. SLO, identify the communication tools. Here are the two columns. In the first column there are the names of some communication tools, and in the another column there are the pictures of communication tools. So first of all we can identify it and then join it with the correct name. So the first one is LED. LED is the abbreviation of line emitting diode. So you can join it like this. And the second one is smoke signals. So find out the correct shape. Here the correct picture is this. So smoke signals are the Native American signals. They can use these signals to warn of attack. So the next one is Braille. Okay, Braille is a form of written language for blind people. So here the correct picture is this. Okay, the next one is a typewriter. So find out the picture of typewriter and then join it. Typewriter is the mechanical or electromechanical machine for typing characters. Okay, the next one is the picture of tribal dance. Tribal dance performed by tribal people. So the correct picture is this. And the next one is the radio. Radio is the technology of signaling and communicating using radio waves. So the correct picture is this. So join it like this. Now move towards the next question. Question number 4. So the question number 4 is the student will explain why these means of transport are important, and SLO recognize the importance of transportation means. So first of all, here I will tell you about why the transport is important. What is the importance of transportation? So transports are important because they take or carry people or goods. Goods mean things from one place to another by means of a vehicle. So here are the three pictures of different transport. First one is land transport, the second one is water transport, and the third one is air transport. First picture is about land transport. Why the land transport is important? So land transport is important because people can move from one place to another. लैंड ट्रांसपोर्ट के ज़रिए लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. So the next is water transport. Why is it important? It is important because they carry goods. Goods mean things, चीज़ें, from one part to another in a country. वाटर ट्रांसपोर्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं मुल्क में. सो द नेक्स्ट वन इज़ एयर ट्रांसपोर्ट. इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज दे फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन इनटू द ग्लोबल इकोनॉमी. सो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी कहते हैं आलमी मईशियत को. तो एयर ट्रांसपोर्ट इसमें काफ़ी क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, सहूलत पहुंचाता है. Now turn the page number 15. Here the question number 5 is tell about the reasons for conflicts and their solution. हमने यहाँ पर reasons बतानी है कि conflicts कहते हैं लड़ाई झगड़े को, वो किस वजह से होते हैं और उनका solution क्या है, उनका हल क्या है. SLO to know about the reason and solutions of conflicts. So the conflict is कि हमारे एट होम
घर में कौन से जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो किस वजह से होती है, उनकी रीज़न क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है। एट स्कूल, जो स्कूल में लड़ाई झगड़े होते हैं उनकी वजह क्या है और उनका हल क्या है। इसी तरह इन नेबरहुड, नेबरहुड में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो किस वजह से होते हैं और उनका हल कैसे निकालना है। सो द कॉन्फ्लिक्ट्स की बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, लेस रिस्पेक्ट भी एक रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट्स की, उसके अलावा मनी प्रॉब्लम है, लाइफ स्टाइल है। तो इस तरह से बहुत से रीजंस है। समटाइम प्रॉपर्टीज़ का भी इशू आ जाता है। सो हमने यहाँ पर बताना है एट होम, घर में जो लड़ाई होती है उसकी वजह क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग। समटाइम हमें बात का ठीक से पता नहीं होता और हम मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें बाद में होता है कि हमने इसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो हमें उसका सोल्यूशन क्या निकालना है, बाय थिंकिंग। सोचेंगे कि जो लड़ाई हुई है वो किस वजह से हुई है, क्यों हुई है, ऐसी होनी चाहिए थी या नहीं। जैसे कि कहा जाता है थिंक बिफोर स्पीकिंग, कि बोलने से पहले सोचना चाहिए। तो जो भी आप बात करें तो पहले सोचना चाहिए। सो द नेक्स्ट वन इज एट स्कूल। स्कूल में जो आपके पास जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनकी रीज़न जो है वो लेस रिस्पेक्ट होती है। समटाइम हम अपने क्लास फेलोज को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, हम उनमें कम्युनिकेशन गैप डेवलप करते हैं जिसकी वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो उसका सोल्यूशन ये है कि शो रिस्पेक्ट, आप सबको रिस्पेक्ट दें, सबको इज्जत दें, प्यार मोहब्बत से बात करें। अगर किसी को आपकी ज़रूरत है कहीं पर किसी वजह से तो आप उनकी हेल्प भी करें। सो द लास्ट वन इज इन नेबरहुड। नेबरहुड में जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि लाइफस्टाइल की वजह से, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो रीज़न है वो लेट नाइट फंक्शंस भी होते हैं। समटाइम हम अपने घर की खुशियाँ मनाने में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने नेबरहुड को भूल जाते हैं। जाहिर बात है अगर हम लेट नाइट फंक्शन करेंगे तो इससे दूसरों को डिस्टर्बेंस होगी। सो हमें क्या करना चाहिए, इसका सोल्यूशन ये है कि हमें ओबे द रूल्स, रूल्स को ओबे करना चाहिए, ज़्यादा देर तक फंक्शंस नहीं करने चाहिए। So now move towards the next question. Question number 6 is select the picture that best way to fix the problem. SLO, how to solve the conflict. Here are the two sentences and there are the pictures of each sentence. So here we resolve the conflict, that how we can solve the problem. The first one is you and your cousin want to play with the same toy. आप और आपकी कज़न एक ही टॉय से खेलना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उससे आप लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे या उसे हैप्पीली दे देंगे। सो द करेक्ट पिक्चर इज बी। सो आप क्या करेंगे, उसको अपना टॉय हैप्पीली दे देंगे। तो ये क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का मेथड है। सेकेंड इज इट बेड टाइम एंड यू आर नॉट रेडी टू स्लीप। बेड टाइम हो गया लेकिन आप रेडी नहीं है किस लिए, सोने के लिए। तो आप क्या करेंगे, अपने मामा बाबा से स्टोरी सुनना पसंद करेंगे या आपस में ब्रदर एंड सिस्टर फाइट करेंगे। सो द करेक्ट पिक्चर इज फर्स्ट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।